So we were talking about Russian formalism yesterday. In between, because of network connectivity, we had to discontinue the discussion. So we'll revise quickly and then come to the point where we resume the discussion. So yesterday we talked about textual interpretations and contextual interpretations. Those who do contextual analysis of a text, they remain in the text. They do not see, or they do not, oh, people are coming. Just a minute. Yes. Yes, so I was telling about textual and contextual analysis text. Okay. Good morning, sir. Very good morning. Very good morning. So those who do textual analysis of a text, they remain in the text. They do not see anything outside the text. I mean, they do not look for any kind of context, either it is historical, contextual, social, religious. Okay. So they just see the words in a text and they do interpret. And those who do contextual analysis of a text, they look for the text as well as the context. Okay. So they can look for the historical context, they can look a text from the point of view feminism, or from the point of view Marxism. Okay. So text plus context. Okay. So yesterday we were talking about this girl falling from the cycle. So if you have a critic who does textual analysis, then that critic would say that there might be some problem in the parts of the cycle, that's why the girl is falling. There might be less air in the front wheel of the cycle, that's why the girl has fallen. Okay. Or the girl might have somebody, please switch off your mic. Okay. So so the one who is doing textual analysis, that person may say, because there might be some problem in the parts of cycle, that's why the girl has fallen. Okay. The person may say, the one who is doing textual analysis, that the person may say that because the girl has is riding on a cycle which does not have the air, that's why she has fallen. Those who are doing contextual analysis, they may say because this is a girl and the society doesn't want a girl to ride a bicycle, that's why people have done something wrong with her cycle, or something is wrong, okay, with the society, that's why the girl has fallen. If it is Marxist analysis, they would say that because this girl belongs to lower stratum of the society, that's why people do not want people of lower class to ride a bicycle. Okay. So they have done something wrong with the bicycle, so that's why the girl has fallen. Okay. So they are taking the context. Okay. So today in Russian formalism and then in new criticism, we will be talking about textual analysis, not the contextual analysis. Okay. So we talked about the difference between Russian formalism and new criticism yesterday. So the basic difference between the two is that for Russian formalism, form is more important than the content. Okay. They do not do interpretation on the basis of the content of a text. What do? They just look for the form. Okay. And if we talk about new critics, they look for both. Okay. For Russian critics, it is form, and for new critics, this is form and content both. For them, for new critics, form and content are closely connected, and one cannot be analyzed separately. If you want to analyze the form, you will have to see the content. If you want to analyze the content, you will have to see the form. Okay. Then we talked about organic formalism yesterday. Who used this term? Yesterday we talked about this.
Coleridge talked about this. Okay, so Coleridge says that, I mean, this is not related to Russian formalism, but because this is a related term, okay, that's why we discussed it. Okay, so he says that everything is organically related to one another, as it is in a plant or in a human body. So you cannot, analyze a part of the human body separately. You will have to see its connection with the other parts of the body. This is how organic form is there of something, right? So these are the influential Russian and Soviet scholars for Russian formalism. So you need to remember them. Nothing to explain here right now. Okay. The two associated movements on which questions in the examinations do come. Okay. So the one is opposage. There is a Russian name for that, which it's difficult for me to read. But we have its English translation, which is Society for the Study of Poetic Language. This movement was in St. Petersburg, and it started in 1916. Okay, and Viktor Shklovsky was the founder of this group. He has written a very important work which is Art as Device. Okay. So we'll talk about art as device in the coming slides. The other important group was Moscow Linguistic Circle, which began in 1915. So as the name suggests, it was in Moscow. And who was its founder? Fortunato. Okay, and Roman Jakobson, of course, was an eminent figure of this group. Then there is another group which is Prague Linguistic Circle. Okay. So these two groups, Opposage and Moscow Linguistic Circle, together with Prague Linguistic Circle, they were responsible for the development of Russian formalist theory of semiotics and linguistics. Okay. When we study Russian formalism, we do not talk about Prague Linguistic Circle, because this is this group is directly related to linguistics, not to literary criticism. Okay, but of course this group contributed in the development of Russian formalist theory. So these three people are commonly known as the founders of Russian formalism. One is Viktor Shklovsky, the other is Roman Jakobson, and then Vladimir Propp. So yesterday we discussed about how does a text work in the perspective of Russian formalists. For them, the focus is not on content; their focus is on the form. Okay, so it is on the language, not on exophoric devices. Do you remember exophoric devices? Yesterday we talked about exophora and endophora. याद है आपको? Anybody? I hope I am audible. Yes, sir, you're audible, but I don't. Okay. Exophoric references are the references which are outside the text. आप इसको नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता कभी कभी. Exophoric references are the references which are outside the text. Okay. Endophoric references, ENDOPHORIC. Endophoric references are within the text. Yesterday I gave example. Rohan is a good boy. He daily comes on time in the class. So this he refers back to the previous sentence. Okay, in the previous sentence to Rohan. So this he has the reference in the same text. So this reference will be called endophoric reference. Exophoric reference, what is that? Which is not there in the text. So suppose there is a sentence. Okay, let me write it for you. Just a minute. I can write it here. I have given the example of this sentence somewhere else also.
Okay, if I ask you stop doing that here, if this is the text, okay, so how will you interpret this sentence? What is the meaning? Any of you? So meaning is not clear. Yeah, meaning is not clear because this text does not have endophoric references. You are not sure what do we mean by that, what is to be stopped, what is the location of here. Okay, so if this is the text, okay, nothing else is there, right, then you will have to be dependent on its exophoric references. Okay, okay, now I give you the context. The teacher is there in the classroom, one student is using mobile. Okay, so the teacher says stop doing that here. Now you will get the meaning, right? अब आपको समझ में आ रहा है कि टीचर कह रहा है कि stop using mobile in the classroom, right? So here is the classroom that is using the mobile. So this text can be interpreted only and only if you think about the exophoric reference. So the reference is not there in the text. Okay, so but you know, Russian formalists, let me come to the slide, they do not focus on the exophoric references. This was a simple example which I gave you, but here by exophoric references Russian formalists mean you know, a biography of the author, culture that the author belonged to, or the culture which, you know, the work is related to, or history that is related to the work of art that is being analyzed. Okay, so he talks about what? Endophoric references, the references within the text. Is that clear to all of you? Yes, sir, clear. Okay, just a minute, somebody wants to join. Where is the contact? Okay, yes. Now they compare a work of art with a car, with a machine. Okay, so different parts of a machine, when you know, when those parts collectively make a machine, then they create an organic whole, which Coleridge also talks about. Okay, so literary works which resemble with machine, they are the result of an intentional human activity in which a specific skill transforms raw material into a complex mechanism. Okay, so when a poet writes a poem, that is number one, intentional human activity. Okay, he writes a poem with an intention, that is not spontaneous. I mean, ideas can be spontaneous, but when he is going to write, that is, you know, intentional human activity, and with a specific skill. And you know, that poet applies a specific skill of, you know, putting forward the ideas into, you know, into a defamiliarized way. We will talk about defamiliarization today itself. Okay, so raw material which is there in the mind of the poet, that is put in a way which is a little bit difficult for the readers to comprehend. Okay, or you know, which readers had generally not, you know, experienced in his or her life, right? Then yeah, suitable for a particular purpose. Okay, then two important points here, because they talked about, you know, this machine. Russian formalists talked about that literary works resemble with machines, right? So Julia Kristeva condemns this mechanical idealism. Julia Kristeva is known for what? Textuality and intertextuality, if you can remember, right? Sir, yeah, intertextual. Right. So she has written a work, The Ruins of Apoetics. ये याद रखिएगा, A is important here. ये एग्जाम में कभी इसको कर सकते हैं कि The Ruins of Poetics है, या The Ruins of Apoetics है, या The Ruins of the Poetics है. ठीक है, ये A ऑड क्यों लग रहा है? क्योंकि ये पोइटिक्स लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है इसमें,
इस वजह से ही थोड़ा बन सकता है एग्जाम का पॉइंट, राइट। सो जूलिया क्रिस्टेवा सेज अ लिटरेरी टेक्स्ट इज रिड्यूस्ड टू मियर लिंग्विस्टिक कैटेगरीज। किसने ऐसा किया था? रसन फॉर्मुलिस्ट ने। अ सेल्फ एंड Kristeva calls it a self-trial rather than objective knowledge. Then there is a similar work like that, The Poetics of Runes in Rhanisha Literature, which came in 2017, and it was written by Andrew Hull. So we have already talked about, this analogy of car and creative work of art. Okay, so here you need to see. The text is made up of many devices. They are stylistic devices, narrative devices, and literary devices. Okay, how language is being used, how story is presented, what are the literary devices that are being used. Okay, so these things collectively make a creative work of art. Then here are some important technical terms which are related to Russian formalism. We will talk about them one by one. Fabula and sujet, practical and poetic language, literature and literariness, foregrounding and backgrounding. So कल हमने इन पे बात की थी, कोई बताएगा फैबुला और सुजेट में क्या डिफरेंस है? Any of you? It's a plot and Fabula story. is story. Yes. Fabula is plot is story, no? Fabula is plot or story. Okay. Then sujet. जैसे कल मैंने आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिया था कल। एक राजा था, एक रानी थी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो ये तो हो गया फैबुला, स्टोरी, ठीक है। अब राजा रानी का रिलेशनशिप कैसा था, ठीक है, कैसे मर गए, उसके पीछे क्या फैक्टर्स थे, इन सब चीज़ों को कैसे प्रेजेंट किया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा? सुजेट हो जाएगा, राइट। हमने आपको कल बॉलीवुड का भी एग्जांपल दिया था। कौन सी? मैंने प्यार किया, और कौन सी थी? नहीं, मैंने प्यार नहीं, हम आपके हैं कौन, राइट। प्लस वो एक और कौन सी मूवी थी? नदिया के पास। सो दोनों का फैबुला एक ही है, लेकिन प्रेजेंटेशन अलग टाइप की है, ठीक है। ये लेकिन ये जो सुजेट है, जो मतलब जो प्रेजेंटेशन की बात है, रसन फॉर्मुलिस्ट जनरली बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टोरी। सो क्रोनोलॉजी फॉर देम इज इम्पॉर्टेंट। ओके, so fabula is a story, what the text is all about, what is happening in the text, and sujet is how the text is arranged, how the story is being told, from which perspective, from which point of view, first person point of view, second person point of view, third person point of view, which perspective, historical perspective, cultural perspective. okay, टेक्स्ट को कैसे अरेंज किया गया है। जैसे आप अनीता देसाई का क्राई द पीकॉक पढ़ चुके हैं ना, कल भी शायद हमने इसकी बात की थी। तो कल ही पढ़े थे आप? यस सर। अच्छा, तो उसकी स्टार्टिंग कैसे होती है? एक डॉग होता है, याद है आपको कुछ? ये सर डॉग की डेथ हो जाती है। हाँ, ठीक है। तो वो डॉग की डेथ फिर स्टोरी से कैसे कनेक्टेड है? तो वो उसको अपनी चाइल्ड जैसा मानती है, बिकॉज शी इज चाइल्डलेस। तो उसका जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे शुरू हो रहा है, ठीक है। वो स्टोरी वहाँ से भी शुरू कर सकती थी अनीता देसाई, जब उसका हस्बैंड और माया और क्या नाम हस्बैंड का? गौतम। यस सर। तो उनका रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, वहाँ से भी शुरुआत हो सकती थी। लेकिन उन्होंने कैसे दिखाया? सबसे पहले दिखाया कि जो इसकी हीरोइन है उसका साइकिक रिप्रेजेंटेशन दिया सबसे पहले, ठीक है, कि वो उसकी डिजायर्स, हाँ, उसकी डिजायर्स क्या है, वो क्या चाहती है ज़िंदगी में, ठीक है। उसके बाद में दिखाया कि उसका हस्बैंड क्या चाहता है, उसका किस टाइप का उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, ठीक है। उसके बाद में पूरे एक फोर टेलर वगैरह है, ठीक है।
तो उसकी बातें होती रहती हैं। तो मतलब इन सब चीज़ों को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, कोई दूसरा राइटर हो सकता है उसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करता है स्टोरी को, वही स्टोरी को, ठीक है। तो ये सेजुला है, सॉरी शुजे है, ठीक है। इज दैट क्लियर? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस अगर कोई अप्लाई कर रहा है तो वो क्या है, वो फेबुला नहीं है, वो क्या है, शुजे है, राइट। ऑलराइट, सो the discipline concerned with the fabula and शुजे is called narratology. narratology के लिए एक बहुत ही फेमस क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, क्या नाम है उनका, क्रिटिक है सॉरी। नैरेटोलॉजी की कौन बात करता है, जल्दी बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, एंड ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म। Vladimir Prop. Okay, so Vladimir Prop is known for his narratology, narrative structures. Okay, so अब ये फेबुला और शुजे दोनों मिलकर के नैरेटोलॉजी की बात करते हैं, मतलब वो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उस वर्क का करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे किया गया है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है नैरेटोलॉजी में। तो स्टोरी प्लस हाउ इट हैज़ बीन प्रेजेंटेड इज इक्वल टू नैरेटोलॉजी, एंड नैरेटोलॉजी इज फ्रॉम व्लादिमिर प्रॉप. So yes, and Vladimir Prop has written a very important work which is morphology of folk tale in 1928. Okay, so here it is written, Sujet is an employment of narrative and fabula is the order of the events contained in the story. Okay, so इनको सबसे पहली बार यूज किया था जिसने, वो है व्लादिमिर प्रॉप और विक्टर स्लोप्स्की, बट व्लादिमिर प्रॉप इज मोर इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ नैरेटोलॉजी. यहाँ पे एक ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट टर्म है नैरेटिव्स. प्रॉप ने 31 नैरेटिव्स को डिस्कस किया था अपने वर्क में, ये इम्पॉर्टेंट है. वैसे नैरेटोलॉजी आपको रवि सर पढ़ाएंगे. ही हैज़ डन हिज PhD यूजिंग दिस मेथड ऑफ व्लादिमिर प्रॉप. ओके, तो लेकिन ये मैंने इस वजह से दिया है कि ये नैरेटिव्स का कॉन्सेप्ट है और उन्होंने 31 नैरेटिव्स को आइडेंटिफाई किया है. किसने? प्रॉप ने. ओके, नाउ प्रैक्टिकल लैंग्वेज वर्सेस पोइटिक लैंग्वेज. सेकेंड थिंग, the first is fabula and sujet, the second is practical and poetic language. Okay, so poetic language is a framed speech. ये important है. You frame it in within certain meters. Somebody wants to join. So poetic speech कैसी होती है? Framed speech होती है. You put the things within a boundary of something. Right? So suppose you are writing something in iambic pentameter. तो iambic pentameter में जब आप लिख रहे होते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि जो पहला सिलेबल आ रहा है वो स्ट्रेस्ड होना चाहिए, सॉरी अनस्ट्रेस्ड होना चाहिए. सेकंड स्ट्रेस्ड होना चाहिए और 10 सिलेबल्स होने चाहिए, 5 फीट होने चाहिए. राइट? तो आप क्या कर रहे हैं? आप वर्ड्स को किस में रख रहे हैं? एक फ्रेम के अंदर सजा रहे हैं. राइट? प्रोज इज ऑर्डिनरी स्पीच. प्रोज के साथ ऐसा नहीं होता है. राइट? प्रोज इकोनॉमिकल है, इजी है, आप उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और वो डायरेक्ट एक्सप्रेशन होता है जैसे कि बच्चे बोलते हैं. दिस इम्पॉर्टेंट. ओके, और कहते हैं कि पोएटिक लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, रफेंड एंड इम्पीडेड लैंग्वेज. कई बार ये रफ लैंग्वेज जैसी होती है. रफ लैंग्वेज का मतलब जो सिंटैक्स होना चाहिए, यूजुअल सिंटैक्स जो होना चाहिए, वो कई बार ज़रूरी नहीं कि वो हो. जैसे इंग्लिश का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. राइट? लेकिन हो सकता है कोई राइटर उसको फ्रेम में डालने के लिए वो अलग तरीके से लिख ले. जैसे वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स में लिखा है 10,000 आई सॉ एट ए ग्लांस. राइट? तो अगर हम ग्रामर की बात करें तो क्या होना चाहिए? उनको लिखना चाहिए था आई सॉ 10,000. ऑब्जेक्ट उन्होंने पहले ला दिया, जबकि स्ट्रक्चर इंग्लिश लैंग्वेज का है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. लेकिन उन्होंने क्या कर दिया? ऑब्जेक्ट पहले लाया, फिर सब्जेक्ट लाए, उसके बाद में वर्ब लिख करके आए. ठीक है? तो
roughened language or impeded in the sense that it becomes many times difficult for the audience to understand what is written. Okay, all right, please stop me wherever you want me to stop. Then the third concept is artful and literariness. ये important point यहाँ पर ये है कि इनका जो literariness है रसन फॉर्मलिस्ट का, वो क्या है? Devices. Which devices? Poetic devices or literary devices. If a writer has used poetic devices artistically, creatively, in an effective manner, then that work has literariness. That is important. Okay. और ये सिमिलर आइडिया दिया था कॉलेज ने, फ्रेशनेस ऑफ सेंसेशन एंड इजरा पाउंड मेकिंग इट न्यू. ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है. सो द पर्पज ऑफ आर्ट देन इज टू लीड अस टू नॉलेज ऑफ ए थिंग थ्रू द ऑर्गन ऑफ साइट इंस्टीड ऑफ रिकॉग्निशन बाई एनस्ट्रेजिंग. ये अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम बात कर रहे होंगे डिफेमिलियराइजेशन की. ठीक है. And complicating form. The devices of art makes perception long and laborious. ये कहते हैं कि जब हम पोएट्री को पढ़ रहे होते हैं तो प्रोज पढ़ने जैसा नहीं होता है. हमको देर से समझ में आता है, उनके परसेप्शंस जो भी है उस वर्क में उसको समझने में टाइम लगता है और वो लेबोरियस भी होता है. इसी टाइप से जो पोइट लिख रहा होता है उसके लिए भी वो लेबोरियस होता है. इट्स नॉट एन इजी टास्क. द परसेप्चुअल प्रोसेस इन आर्ट हैज ए पर्पज ऑल इट्स ओन एंड आउट टू बी एक्सटेंडेड इट्स टू इट्स फुलेस्ट. ओके. सो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आर्ट में जो परसेप्चुअल प्रोसेस है इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज किया जाना चाहिए. Now we were talking about this defamiliarization. हमने बात की थी किसमें? फ्रेम्ड स्पीच है और रफेंड है, इम्पीडेड है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोइट्स क्या करते हैं और जो भी क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं वो डिफेमिलियराइज करते हैं चीज़ों को. हम कल यहीं पे हमारा शायद में लेक्चर स्टॉप हो गया था कल. ठीक है. तो सबसे पहले ये देख लीजिएगा, डिफेमिलियराइजेशन. दिस कॉन्सेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड क्वाइंड इन 1917 बाय स्लोब्स्की इन हिज जैसे आर्ट एज डिवाइस, जिसका ऑल्टरनेट ट्रांसलेशन भी है आर्ट एज टेक्निक. तो इन वेरी सिंपल टर्म्स डिफेमिलियराइजेशन क्या है? टू मेक द फैमिलियर स्ट्रेंज. इफ यू कैन रिकॉल यस्टरडेज एग्जाम्पल, I gave you this one. Yes. Do you remember this example? And grief ago. Grief ago, है ना. So मतलब एक ordinary human being के लिए it's not possible to think in these terms, है ना. उसको वो तो बोलेगा भी a month ago हो सकता है, a year ago हो सकता है, an hour ago हो सकता है. ठीक है. But common beings they won't think about a grief ago. तो उसने क्या किया? जो फेमिलियराइज कॉन्सेप्ट है या जो फेमिलियर फ्रेज है हमारे सामने, उसको क्या कर दिया? उसने डीफेमिलियराइज कर दिया. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, राइट? सर कुछ हिडन मीनिंग. बिल्कुल 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 बिल्कुल. इसी वजह से तो अब इसको इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट होगा. एन आर अगो लिख दो, अ मंथ अगो लिख दो, ये फेमिलियर टर्म्स है तो इनको तो तुरंत समझ जाओगे आप. लेकिन अब ग्रीफ है को जैसे ही उसने लिखा तो अब आपको देखना पड़ेगा ग्रीफ से उसका मतलब क्या है. फिर आपको पूरा टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा ध्यान से, एंड देन यू विल हैव टू सी व्हाट इज इट्स कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, नॉट आउटसाइड द टेक्स्ट. अगर आप रसन फॉर्मुलिस्ट की बात करें, अगर आप कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशंस की बात करें तो हो सकता है जैसे मैं अगर उसको देख रहा हूँ से हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ तो मैं चला जाऊँगा डायलन थॉमस के टाइम पे क्या हिस्ट्री थी, क्या वो किसी ऐसे मतलब कोई हिस्टोरिकल इवेंट की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से वो ग्रीफ लिख रहे हैं यहाँ पर. ठीक है ना, दर्द से शुरू कर रहे हैं. ठीक है. या उनके पर्सनल लाइफ में कुछ था ऐसा था तो वहाँ पर हम चले जाएंगे. लेकिन रसन फॉर्मुलिस्ट क्या करेंगे? वो टेक्स्ट में ही इसका रेफरेंस देखेंगे. ठीक है. हाउ दिस टेक्स्ट हैज बीन फ्रेम्ड एंड देन व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ द वर्ड ग्रीफ हियर. एंड दैट्स व्हाई दिस बिकम्स डिफिकल्ट, राइट?
आई गेव यू अनदर एग्जाम्पल, डू यू रिमेंबर दिस? इसमें डिफेमिलराइज्ड क्या है? राइटर ने जो मतलब इसको किस टाइप से फ्रेम किया हुआ है इस पोएम को, इन जनरल लोग जो इंटरप्रेट करते हैं इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं कि लवर इज राइटिंग समथिंग इन द प्रेज ऑफ बिलव्ड। लेकिन अगर आप आर्टिस्टिक डिवाइसेस की बात करें यहाँ पर, ठीक है, आप मीटर रिदम की बात करें तो आयम्बिक पेंटामीटर में इस पोएम को लिखा गया है। और आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, राइट? सो दिस shall is unstressed, then I is stressed, right? Then in compare, fair is stressed. Stressed और unstressed जानते हैं ना आप लोग कि भूल गए? जानते हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है। Then D is unstressed, 2 is stressed, okay? Then in summer, some is stressed, and then day is stressed, right? Now you see, if you are writing something in the praise of your beloved, then beloved must be more important for you, right? लेकिन आप देखिए इसको दी किसके लिए यूज हुआ है? beloved के लिए। इसको तो एम्फेसाइज नहीं किया गया है। लैंग्वेज में हम जिस वर्ड को एम्फेसाइज करते हैं वहां से मीनिंग आती है ना। सो हियर आई इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉट दी। द लवर इज मोर इम्पोर्टेंट, दो द लवर इज राइटिंग अ पोएम अबाउट हिज बिलव्ड, बट द लवर इज मोर इम्पोर्टेंट। हाउ कम? ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी नो एज डीफेमिलराइजेशन। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है? आम इंसान को क्या पता चलेगा कि एक लवर है वो अपनी बिलव्ड के बारे में लिख रहा है, लेकिन जो इस टेक्स्ट को एनालाइज कर रहा होगा वो इसको कैसे देखेगा? एक अलग नजरिए से देखेगा। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। यस, Yes, sir. okay, now coming back, yes, now look at this flower and the tree. ये जो पेड़ है, you can compare it with the poem, ठीक है? और poem by डायलन थॉमस, और ये जो फ्लावर है इसको आप कंपेयर कर सकते हैं द वर्ड ग्रीफ। पहली ही लाइन में जो पोइट्री में उस पोएम में सबसे अलग है वो है ग्रीफ। तो उस वहाँ पे क्या हुआ है? इस पेड़ से, मतलब उस ट्री से इस फ्लावर को अलग करके देखा जा रहा है। गेटिंग इट? तो एक चीज़ है फोरग्राउंड, दूसरी चीज़ है बैकग्राउंड। एक ये पूरी पोएम एक बैकग्राउंड हो गया और फोरग्राउंड में क्या है? फ्लावर है, ठीक है ना? सो टू मेक द थिंग्स डीफेमिलराइज, राइटर्स और पोइट्स डू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ foregrounding and backgrounding. Okay, so in Grief Ago, grief is foregrounded. In sonnet 18 of Shakespeare, I is foregrounded and thee is backgrounded. Background में जो होता है उसका कम इंपॉर्टेंस होता है, foreground का ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, right? So this foregrounding is actually a stylistic device, ठीक है? स्टाइलिस्टिक्स आपके उसमें है, क्या नाम, लिंग्विस्टिक्स में एक है टॉपिक, ठीक है? सो समडे यू नो दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड। सो द नोशन ऑफ फोरग्राउंडिंग, अ टर्म बोरोड फ्रॉम द प्राग स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है? प्राग लिंग्विस्टिक स्कूल से, स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स से इसको यूज किया गया। एंड लेटर पॉपुलराइज्ड बाय लीच एंड शॉर्ट। लीच एंड शॉर्ट ने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी, मैंने उसका नाम याद देना भूल गया, आप उसको लिख सकते हैं। स्टाइल इन फिक्शन, स्टाइल इन फिक्शन 1981, एंड देन रिवाइज्ड एडिशन ऑफ दिस बुक केम इन 2007। These Leach and Short both are, both these people are alive. They are the professor in Lancaster University. Okay, so वो कहते हैं कि ये फोरग्राउंडिंग क्या है? आर्टिस्टिकली मोटिवेटेड डिविएशन। डिविएशन से मतलब क्या हमारा है? मतलब नॉर्म से अलग हट करके जा रहे हैं, ठीक है? तो अब नॉर्म क्या है? अ मंथ एगो, एन आवर एगो, अ ईयर एगो, अ वीक एगो, ये क्या है? जनरल नॉर्म है, लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन हमने क्या कर दिया? इसको हमने क्या कर दिया? डिविएट कर दिया हमने।
जो नॉर्म था उससे हम डिविएट हो गए, ठीक है ना, तो हमने लिख दिया अ ग्रीफ अगो। सो दिस इज हाउ वी मेक द थिंग, वी डू foreground the things, right? So it refers to the range of stylistic effects that occur in literature, whether at the phonetic level, जैसे कि alliteration है, rhyme है, ठीक है, तो ये इसमें ये जो है ना, इसमें जो foregrounding है वो किस लेवल पे है, phonetic लेवल पे है, क्योंकि हम साउंड की बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें किसके लेवल पे है, स्ट्रक्चरल लेवल, सिमेंटिक लेवल, ठीक है। इज दैट क्लियर? फोरग्राउंडिंग आपको समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो बताइए जल्दी से। यस सर, क्लियर क्लियर। ठीक है। 10,000 आई सॉ एट ए ग्लांस, इसमें भी फोरग्राउंडिंग है। क्या फोरग्राउंडिंग है? नॉर्म क्या है? आई सॉ 10,000 एट ए ग्लांस, है ना, लेकिन उसने 10,000 को पहले ला करके क्या किया, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट बना दिया। ऑब्जेक्ट हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द सब्जेक्ट ओवर देयर। ओके, सो फोरग्राउंडिंग। ओके, नाउ ये तो हमने आपको समझाने के लिए पॉइंट्स दिए थे अलग अलग, जो क्योंकि ये इनसे आप फेमिलियराइज्ड हैं। लेकिन स्लोप्स्की ने कौन से एग्जाम्पल दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अपने डीफेमिलियराइजेशन कॉन्सेप्ट के लिए उसने किसका एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो टॉल्स्टॉय को उन्होंने साइट किया है, और जिसमें उन्होंने बात की है द नरेटर ऑफ हॉलस्टोमर की, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये द नरेटर ऑफ हॉलस्टोमर एक हॉर्स है, और उसका पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से लिया गया था, हॉर्सेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो दैट मेक्स द कंटेंट ऑफ द स्टोरी सीम अनफेमिलियर, जो हॉर्सेस का पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी वजह से स्टोरी अनफेमिलियर बनती है, ठीक है। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक कॉन्सेप्ट है रिटार्डेशन, ये भी इन्हीं का दिस रसन फॉर्मलिज्म का ही कॉन्टेक्स्ट है। द प्रोसेस ऑफ परसेप्शन इज प्रोलॉन्ग्ड। एक सेकेंड, somebody wants to join. Okay, yes. So retardation क्या है? The process of perception is prolonged। हमने इसकी पहले भी बात की है, अभी हम आपको दिखा देते हैं। Yes. Yeah, this makes perception long, ठीक है। मतलब सिंस वी एनकाउंटर द थिंग्स विच आर नॉट फैमिलियर, दैट्स वाई द इंटरप्रिटेशन एज वेल एज द क्रिएशन बोथ थिंग्स बिकम्स प्रोलॉन्ग्ड, ठीक है। रिटार्डेशन, ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द थिंग्स प्रोलॉन्ग्ड इज रिटार्डेशन। ओके, इसमें एक हमने स्लाइड छोड़ दी थी, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। यस, ये टर्म याद रखिएगा, ओरिजिनल टर्म डिफेमिलियराइजेशन के लिए है ऑस्ट्रोनिम, ठीक है, ये ओरिजिनल टर्म है। और उन्होंने डिफाइन कैसे किया? एनकरेजिंग पीपल टू सी कॉमन थिंग्स एज स्ट्रेंज, वाइल्ड और अनफेमिलियर, डिफेमिलियराइजिंग व्हाट इज नोन इन ऑर्डर टू नो इट डिफरेंटली और मोर डीपली। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन तो अब आपको समझ में आ रही होगी, वी हैव डिस्कस्ड इट अ लॉट, राइट। एनी प्रॉब्लम इन डेफिनेशन? नो। सर ये जो वर्ड आपने बताया है ये डिफेमिलियराइजेशन का ओरिजिनल वर्ड है? हाँ हाँ हाँ, ओके सर, ठीक, ओके। यस, somebody wants to ask something perhaps? No. सर ये जो वर्ड था ऑस्ट्रेनी लास्ट स्लाइड में, हाँ, हाँ। क्या इसका रूट वर्ड स्ट्रेंज है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं है। स्ट्रेंज नहीं है, लेकिन क्या है वो मैं आपको मतलब चेक करके बता सकता हूँ, लेकिन स्ट्रेंज नहीं है ऑफकोर्स, ठीक है। ओके, then some other important points. Shklovsky cites Lawrence yes
Lawrence Sternes, Tristram Shandy as an example of the story that is defamiliarized by unfamiliar plotting. अनफेमिलियर प्लॉटिंग के लिए वो इस स्टोरी को रेफर करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा. और ओके देन यस, नाउ वील टॉक अबाउट सम रिलेटेड कॉन्सेप्ट. अच्छा, अभी तक हम बात कर रहे थे केवल रसन फॉर्मुलेशन की. आपको अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हम कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो अलग अलग थियरीज में हैं उनकी बात करेंगे. एक्सक्यूज मी सर. यस, सर कॉन्टेक्स्ट एंड कंसेप्चुअल एंड कॉन्टेक्स्ट वाला जो पॉइंट है वो एक बार आप मुझे समझा दीजिए बिकॉज़ आई मिस दैट. अच्छा ठीक है, जस्ट अ मिनट. मैं कुछ लिख रहा हूँ, वही एग्जाम्पल में दे देता हूँ आपको. सेकेंड वन इज रोहन इज अ गुड बॉय, he is very honest. ये इसमें रोहन इज ए गुड बॉय, ही इज वेरी ऑनेस्ट. ही का मीनिंग कहाँ है? ही का मीनिंग क्या है? रोहन. ठीक है, आई होप आई एम ऑडिबल. यस सर. यस सर. ही का मीनिंग है रोहन, और रोहन कहाँ है? विद इन द टेक्स्ट. सो ही का जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसा है? टेक्सचुअल है. ठीक है, सारी मीनिंग टेक्स्ट में ही है. लेकिन स्टॉप डूइंग दैट हियर में आपको पता नहीं है कि ये दैट क्या है, ठीक है, और ये हियर क्या है, हियर किस लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमको कुछ पता नहीं है. क्या स्टॉप करना हमको कुछ पता नहीं है. तो इसका जो एब्रप्टली कोई चीज नहीं, एब्रप्टली नहीं है. इसका मीनिंग हम केवल कब निकाल सकते हैं? जब हमको कॉन्टेक्स्ट का पता हो. जैसे मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, टीचर ने क्लासरूम में बोला, वो कोई बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा था, तो टीचर ने बोला स्टॉप डूइंग दैट हियर. ठीक है, अब आपको हियर का पता, मीनिंग पता है. हियर का मतलब क्या है? क्लासरूम. दैट क्या है? यूजिंग मोबाइल. स्टॉप क्या करना है? यूजिंग मोबाइल. ठीक है, सो यू आर गेटिंग द मीनिंग थ्रू द कॉन्टेक्स्ट, नॉट थ्रू द टेक्स्ट, राइट. बट ही का मीनिंग आपको टेक्स्ट से मिल रहा है. तो स्टॉप डूइंग दैट हियर केवल इतना ही अगर लिखा है, यही केवल अगर टेक्स्ट है आपका, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा है, देन यू कैन नॉट इंटरप्रेट दिस स्टेटमेंट विदाउट द कॉन्टेक्स्ट. while the other thing, the meaning of he can be interpreted, only with the help of text here, within the text, right. now दो टाइप की क्रिटिसिज्म है. मैं वहीं पे पहुंच जाता हूं. पहले अभी आपको टेक्सुअल कॉन्टेक्सुअल का मतलब समझ में आ गया होगा, राइट. नाउ क्रिटिसिज्म दो टाइप, हाँ वेलकम. क्रिटिसिज्म दो टाइप की होती है. मैं आ जाता हूँ उसी स्लाइड पर. यस, टेक्सुअल क्रिटिसिज्म है और कॉन्टेक्सुअल क्रिटिसिज्म है. टेक्सुअल क्रिटिक्स क्या करते हैं कि मीनिंग को केवल और केवल टेक्स्ट में ही देखते हैं. ऑथर उनके लिए कुछ नहीं है. रीडर का इंटरप्रिटेशन क्या है? इट हार्डली मैटर्स टू देम. ऑथर की इंटेंशन क्या थी? इट हार्डली मैटर्स टू देम. उसके टाइम पर हिस्ट्री क्या थी, कल्चर क्या था, ठीक है ना, किस पर्सपेक्टिव में उसने लिखा है, दीज थिंग्स हार्डली मैटर्स टू देम. उनका केवल मतलब ये है कि टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है, दैट मैटर्स. कॉन्टेक्सुअल क्या करते हैं कि अगर शेक्सपियर ने अगर हैमलेट को लिखा, तो अगर आप कॉन्टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन आपको उसको करना है, तो आपको उस टाइम की हिस्ट्री देखना पड़ेगा, ठीक है ना, उस टाइम के कल्चर को देखना पड़ेगा, उस टाइम के सोसाइटी को देखना पड़ेगा. उसके साथ में आप उन सब चीज़ों को इंटरप्रेट करेंगे, तो वो कॉन्टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन हो जाएगा. ठीक है, अब जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया था, ये लड़की है, साइकिल चला रही थी, गिर गई है. ठीक है, तो जो अगर टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन जो कर रहा होगा, वो बोलेगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि अगले पहिए में हवा बहुत कम थी, तो इसकी जो बाइक है वो स्लिप हो गई, इस वजह से लड़की गिर गई. तो वो क्या कर रहे हैं? टेक्स्ट के अंदर जो कुछ है, ये टेक्स्ट यहाँ पे क्या है? साइकिल और ये लड़की.
और रोड जहाँ पे चला रही होगी वो रोड, ठीक है। तो या रोड स्लिपरी था, इस वजह से साइकिल से गिर गई वो, या हो सकता है कि उसने गलत तरीके से इसको बोड़ दिया, इस वजह से वो गिर गई। लेकिन वो सारी चीज़ें किस में है, लड़की साइकिल चला रही थी, कैसे चला रही थी, उसके जो पार्ट्स हैं साइकिल के वो कैसे हैं, ठीक है। लड़की साइकिल चलाना जानती है कि नहीं जानती है, वो उसी टेक्स्ट में है सब कुछ, वहाँ से इंटरप्रिटेशन होगा। लेकिन यस सर जैसे पोएम्स की कुछ लाइंस दे दी जाती हैं और नीचे क्वेश्चंस होते हैं और लिखा जाता है कि प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। क्या ये एग्जांपल ले सकते हैं सर कॉन्टेक्चुअल में? नहीं, एक्चुअली ये तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 11th 12th में, ठीक है। तो वहाँ पे उनका जो कॉन्टेक्स्ट से रेफरेंस होता है वो ये होता है कि ये किस राइटर ने लिखा है, कौन सी पोएम है ना। उसके बाद में इसके एक सेकंड, लेट मी फिनिश माय पॉइंट। ये अच्छा, ये डू यू एग्री कि ये 11th 12th वाले क्वेश्चंस होते हैं या बीए में पूछ ले जाते हैं ऐसे, राइट? वहीं से तो आप बात कर रहे हैं। जी सर। हाँ, तो वहाँ पर जो इवेल्युएटर होता है या क्वेश्चन पेपर सेटर होता है, उसका पर्पस केवल ये होता है कि स्टूडेंट को ये पता हो कि ये लाइंस इस पोइट से हैं, उसकी इस पोइम से हैं, ठीक है। और इस पोएम में इसके पहले क्या बात की गई, अब क्या बात होने वाली है, राइट। तो ये एक्चुअली उस कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं की जा रही है, ये तो आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए वो कॉन्टेक्स्ट मांगा जा रहा है कि आपने उस पोएम को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आपको पता है कि नहीं कि कहाँ से ये स्टेंजा लिया गया है। ये कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ये है मतलब दिस इज फॉर योर नॉलेज, चेकिंग द नॉलेज। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। यस सर। तो अब कॉन्टेक्चुअल मीनिंग इसमें कैसे निकलेगी, देखिए। अब ये लड़की साइकिल से गिर गई, मैंने अभी इसके पहले भी बोला था, अगर फेमिनिस्ट क्रिटिक होंगे तो वो क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक लड़की है और समाज नहीं चाहता है कि लड़कियां भी साइकिल चलाना सीखें, लड़कियां भी कार चलाना सीखें, तो सोसाइटी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया, किसी ने हवा निकाल दी होगी। वो ये नहीं देखेंगे कि साइकिल पंक्चर हो गई, वो क्या देखेंगे, किसी ने हवा निकाल दी होगी इसकी, या किसी ने पुश कर दिया होगा साइकिल को, क्योंकि वो नहीं, समाज सोसाइटी चाहती नहीं कि लड़कियां साइकिल सीखें। तो ये वो कॉन्टेक्स्ट देख रहे हैं किसका, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है उसका कॉन्टेक्स्ट वो देख रहे हैं। मार्क्सिस्ट होंगे तो वो क्या देखेंगे, दिस गर्ल बिलोंग टू लोअर स्ट्रेटम ऑफ द सोसाइटी, और ये समाज नहीं चाहता कि जो लोअर क्लास के लोग हैं वो भी साइकिल चलाना सीख जाए, वो भी कार चलाना सीख जाए। इस वजह से किसी ने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया होगा साइकिल के साथ में, या कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ किया गया है सोसाइटी के थ्रू जिसकी वजह से लोअर क्लास के लोग साइकिल चलाना ना सीख पाए। ये कॉन्टेक्स्ट है। तो ओके सर। आई होप इट्स क्लियर। यस सर। ओके, यू आर वेलकम। ओके, सो ये मतलब ये रसन फॉर्मलिज्म और इनको क्या नाम है इसका, न्यू क्रिटिसिज्म, इनको छोड़ करके जो इंटरप्रिटेशंस हो रहे हैं, आप जो क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे वो कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशंस हैं। ओके, अब ये हमने जो बात की थी इनकी, लेट मी कम हियर, ये अ ग्रीफ अगो, ठीक है। तो अगर हम पूरी पोएम को पढ़ें, पूरी पोएम के वर्ड्स को देखें, इसके स्ट्रक्चर को देखें, मीटर को देखें, इन सब चीज़ों को देखने के बाद में अगर हम ग्रीफ वर्ड को इंटरप्रेट कर पा रहे हैं तो वो टेक्सुअल इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। अगर हमको राइटर के पर्सनल लाइफ में जाना पड़ रहा है ग्रीफ वर्ड को इंटरप्रेट करने के लिए, तो कैसा इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। राइटर के टाइम का कल्चर क्या था उसको हमको देखना पड़ रहा है ग्रीफ वर्ड को एनालाइज करने के लिए, कॉन्टेक्चुअल इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, राइट। इन द सेम मैनर हमने यहाँ पे आपको बताया था कि ये पोएम को अगर हम अलग तरीके से देखें, एक अलग नज़रिए से देखें, तो पोइट क्या कर रहा है, अपने आप को ज़रा इम्पोर्टेंट बता रहा है, ठीक है। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन फॉर द पोइट, नॉट फॉर हिज बिलव्ड, आई मीन फॉर द लवर, नॉट फॉर द बिलव्ड, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है। तो हम किस टाइप का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, हम इंटरप्रिटेशन कॉन्टेक्चुअल नहीं कर रहे हैं, हम कैसा कर रहे हैं, टेक्सुअल कर रहे हैं। हम टेक्स्ट में ही देख रहे हैं टेक्स्ट को कैसे फ्रेम अप किया गया है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। Yes, sir. All right. So we were here. Yes. So we have some related concepts, though these concepts are not from
Russian formalism. Jacques Derrida's concept of difference. Please mark the spelling of this word. ये important है. क्या स्पेल डिफरेंस वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? सर डिफरेंट डि- करेंगे सर डिफरेंट। अच्छा ठीक है, वो मैं हाँ सही कह रहे हैं आप, मतलब उसमें फ्रेंच में ना, फ्रेंच में है किस में है? यस सर। हाँ ठीक है, आप मतलब वैसे ही कर लीजिएगा, लेकिन इसकी स्पेलिंग क्या है देखो, जो डिफरेंस वर्ड है एक्चुअली वही स्पेलिंग है इसकी। वैसे रेस्टोरेंट भी लोग यूज़ करते हैं और रेस्टोरेंट भी होता है। तो ये एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं ना डिफरेंट, अनुज जी बोल रहे थे? सर मैं वीरेन बोल रहा हूँ। अच्छा वीरेन जी, हाँ। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि अब क्योंकि इस वर्ड को डिराइव किया गया है तो लोग कहते हैं कि जो ओरिजिनल इसका प्रोनाउंसिएशन है वैसे ही बोलना चाहिए। लेकिन नाउ सिंस दिस वर्ड इज इन इंग्लिश, ठीक है ना, इट इज़ बीइंग यूज्ड इन इंग्लिश, तो आप उसको डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं उसमें। जैसे रेस्टोरेंट वर्सेस रेस्टोरेंट दोनों ही प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ठीक है। यस, तो डिफरेंस वर्ड की स्पेलिंग क्या होती है? ये इम्पोर्टेंट है, इस वजह से पूछ रहा हूँ आप। DIFFERENCE, यही तो होती है करेक्ट स्पेलिंग। लेकिन इन्होंने स्पेलिंग इसको ANCE किया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंटेंशनल है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये DIFFERENCE है, ANCE है, DIFFARANCE है या DIFERANCE है, इस टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट में इन्होंने किसकी बात की है? डिफरेंस मीन्स मेकिंग द थिंग्स डिसफेमिलियर, ठीक है। एंड डिफर DEFER डिफर मीन्स टू डिले। तो वो भी बात करते हैं कि परसेप्शन बिकम्स लॉन्गर एंड लॉन्गर, ठीक है, द थिंग्स आर डिलेड, राइट। Now it was first used in his 1963 paper. Whose paper? Derrida's paper. ठीक है। So cogito et historia de la folio, जैसे भी आप उसको पढ़े, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, ठीक है। सेकेंड कॉन्सेप्ट है फ्राइड का अनकैनी। पढ़ा? मैं कनेक्टेड हूँ? हेलो, ओके ओके। सेकेंड कॉन्सेप्ट है अनकैनी फ्राइड का, ठीक है। तो अनकैनी क्या है? द साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग एज स्ट्रेंजली फैमिलियर रादर देन सिंपली मिस्टीरियस। तो ये भी किसकी बात कर रहे हैं? वही डिफैमिलियराइजेशन की बात कर रहे हैं अनकैनी में भी, ठीक है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, अनकैनी टर्म जो है वो सबसे पहले यूज किसने किया था? कंट्रोल P, ये, ठीक है। और इसको एलाबोरेट किया फ्राइड ने अपने ऐसे 1999 ऐसे में, ये इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में बेर्टोल्ट ब्रेस्ट ने एस्ट्रेंचमेंट इफेक्ट की बात की है, और इन्होंने इस टर्म को ट्रांसलेट किया है स्लोप्स्की के फ्रेज प्रियम ऑस्ट्रेंजेनिया से, ठीक है, जिसका मतलब है डिवाइस फॉर मेकिंग स्ट्रेंच। तो क्योंकि ये तीनों रिलेटेड टर्म्स हैं, इस वजह से मुझे लगा कि ये यू शुड नो, राइट। ओके, हाँ, यस, वो फॉरवर्ड। ये एक बार नेट में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन था विच टू डिवाइसेस, नो आई एम नॉट एबल टू फ्रेम दैट क्वेश्चन, लेकिन ये पूछा था कि कौन से विच टू डिवाइसेस आर इम्पोर्टेंट फॉर, नहीं इम्पोर्टेंट टर्म यूज़ नहीं किया था, मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, लेकिन ये क्वेश्चन इसी ऐसे से था 1956 ऐसे, द मेटाफोरिक और मेटोनिमिक पोल से, ठीक है। तो ये ऐसे इन्होंने रोमन जैकॉब्सन ने लिखा है 1956 में। अब ये है क्या? लिंग्विस्टिक सिलेक्शन क्या है? मेटाफर। और कॉम्बिनेशन क्या है? मेटोनिमी।
उसमें इस टाइप से था विच टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स जैकोब्सन टॉक्स अबाउट। ओके, उसमें मतलब मेटाफर मेटोनमी दिया होगा, मेटाफर सिमली दिया होगा, इस टाइप से कुछ टर्म्स दिए हैं। ठीक है, दिस वॉज देयर इन द एग्जामिनेशन। तो मेटोनमी जानते हैं सब लोग? मेटाफर मेटोनमी में डिफरेंस जानते हो आप लोग? हेलो, मेटोनमी पार्ट हाँ, सिनेक्ड की मेटोनमी, मेटाफोर तो जो हिंदी में रूपक अलंकार। हाँ हाँ ठीक है, हाँ कह सकते हो आप। जैसे he is the किसी को बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं समझ पा रहा हूँ हाँ, किसी का रेफरेंस देते हैं, है ना? ठीक है। I'm not able to form something, but रूपक अलंकार जो होता है मेटाफोर में। मतलब टू थिंग्स शुड बी देयर एंड दोज थिंग्स शुड बी कंपेयर्ड विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स फॉर मेकिंग सिमिलैरिटी। ठीक है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, राइट? सो आयरन मैन ऑफ इंडिया, सो दिस आयरन मैन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, सो टू डिफरेंट थिंग्स आर बीइंग कंपेयर्ड। ठीक है ना? सो लिंग्विस्टिक सिलेक्शन क्या कर रहा है, और मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह पे क्या लिख दिया, आयरन मैन। ठीक है, तो ये आयरन मैन ऑफ इंडिया हो गया मेटाफर उनके लिए। अब मेटोनमी क्या है? you use a word which is the part of a system, or which is a system and we are referring that word for the part of it. ठीक है, synecdoche is a part of metonymy. So जैसे मैं बोलूँ the crown is corrupt, इसका मतलब क्या है? क्या क्राउन करप्ट है? No sir, king. King is corrupt, right? So this crown refers to king, but actually we are not comparing crown with king. ध्यान दीजिएगा, जब हम कह रहे हैं द क्राउन इज करप्ट, तो हम क्राउन को किंग से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। क्राउन इज द पार्ट ऑफ किंगशिप। ठीक है, मतलब ये अब आज की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पहले क्या होता था, क्योंकि ये सारी चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड है। अगर राजा होता था तो उसके सर पे क्राउन होता था, राइट? सो क्राउन इज रेफरिंग टू किंग, बट इट्स नॉट ए कंपैरिजन। मेटाफर में क्या होगा? कंपैरिजन होगा। आयरन मैन और मतलब आयरन मैन और सरदार वल्लभ भाई पटेल को कैसे कंपेयर किया गया है? जितना आयरन में पावर होता है उतना ही सरदार वल्लभ भाई पटेल में था। नहीं, उसके जैसे सख्त थे, वो स्ट्रांग थे, राइट? लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो राजा क्राउन जैसा स्ट्रांग है। वी कैन वी से दैट? तो ये मेटोनमी है। ठीक है, मैं और भी आपको एग्जांपल्स दे दूंगा, जस्ट मिनट। सर, इंडियन टीम won the match। हाँ हाँ, तो उसमें क्या है? उसमें क्या है? सर ये एग्जांपल आएगा उसमें क्या? men for the sword and women for the heart। The man for आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि ये पूरी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन कोई दूसरा वर्ड उसके लिए यूज़ नहीं किया गया एक्चुअली, है ना? तो बट आई चेक इट, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, आई चेक इट एंड विल लेट यू नो। जैसे अगर आप जैसे पॉलिटिशियंस बोलते हैं, जब वो रैलीज निकालते हैं ना, जैसे कोई मथुरा में एक सेकंड रुक जाइए बेटा। जैसे मथुरा में कोई रैली निकाल रहा है, ठीक है, तो अगर कोई पॉलिटिशियन निकाल रहा है, तो अगर वो बोलता है दिल्ली अब दूर नहीं है, तो वो एक्चुअली कहना क्या चाह रहा है? कि दिल्ली मतलब केवल अब 150 किलोमीटर रह गई है, या और कुछ कहना चाह रहा है? अगर पॉलिटिशियन चाह रहा है कि वो जीतने वाला है। यस, आप हाँ, आप प्राइम मिनिस्टर बनने वाला है। सो नाउ दिल्ली रिफर्स टू द किंगशिप हियर नाउ, द कैपिटल, द रूलिंग पार्टी, राइट? तो ये मेटोनमी है। लेकिन अब आप ये कंपेयर नहीं कर सकते हो कि दिल्ली वैसी है जैसी कि प्रधानमंत्री होता है, ऐसे तो नहीं बोल सकते हो। तो दिल्ली और प्रधानमंत्री को अगर आपने कंपेयर कर दिया तो वो मेटाफर बन जाएगा, अदरवाइज इट इज
यू नो मेटोनिमी, ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में। यस हाँ हाँ बोलिए। Yes, sir. Beijing has decided not to trade with India. बिल्कुल 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 सही बात, बिल्कुल सही बात है, क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। तो बीजिंग ने एक्चुअली डिसाइड नहीं किया, किसने किया? वो वहाँ की गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो बीजिंग और गवर्नमेंट को, राइट? लेकिन मेटाफोर में कंपैरिजन होता है। इज दैट क्लियर? ओके ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये मेटाफोर लिंग्विस्टिक सिलेक्शन है और ये कॉम्बिनेशन की बात करता है। कॉम्बिनेशन की बात क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसी का एक पार्ट है या किसी का वो होल है, ठीक है ना। ये याद रखिएगा, मेटाफोर इन्होंने कहा है जैकॉब्सन ने कि ये रोमांटिसिज्म और सिंबॉलिज्म, ठीक है, उसका बेसिस था, और मेटोनमी इज द बेसिस फॉर रियलिज्म, ठीक। देन यस, उसके बाद में ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आई बिलीव सो। मेटोनमी और मेटाफोर में कोई अभी भी डाउट हो तो पूछिएगा मेरे से। अच्छा रुको, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, वो मुझे बताइए कि मेटोनमी है कि मेटाफोर है। No, I'll send you the example on WhatsApp group, okay? Because it will take time. It's already 12, okay? Yes. 6 functions of language पढ़ चुके हैं आप लोग, पहले दूसरे लेक्चर में ही पढ़ाया होगा रवि जी ने आपको। हेलो, सबने पढ़ाया भैया? मतलब मैं इसको पढ़ाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये मतलब ये फॉर्मलिज्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं है, लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है, लेकिन क्योंकि रोमन जैकॉब्सन ने उसको यूज़ किया था, इस वजह से मैं यहाँ पे ला रहा हूँ उसको। सो आई बिलीव यू मस्ट नॉट हैव एनी डाउट। द ओनली पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक हियर दैट दिस मॉडल ऑफ 6 functions of language was derived by Jacobson from Buller's organon model, ठीक है। कौन है वो? कार्ल लुडविग बुलर, ठीक है। उनका ऑर्गेनन मॉडल था जिसमें उन्होंने बात की थी एक्सप्रेसिव फंक्शन की, रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन की और कॉग्निटिव फंक्शन की, ठीक है। वहीं से इस आइडिया को डिराइव किया और जैकॉब्सन ने बात की 6 functions of language. If you want me have any kind of discussion on these, then I can do, otherwise I'll say thank you. I hope I am audible. Am I disconnected? Oh, I seem to be disconnected. हेलो, हेलो, जस्ट प्लीज लेट मी नो। हेलो, हेलो सर। आवाज डिस्कनेक्ट हो गया था मैं क्या? यस सर, आप डिस्कनेक्ट। ओके ओके, तभी मैं कहूँ कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। इज दैट क्लियर नाउ? Yes, sir, it is. ओके, ऑलराइट। सो वी वर हियर, हम बात कर रहे थे 6 functions ऑफ लैंग्वेज की। आपने सुन पाया था? कुछ नहीं सुना था? तो लिया था सर। अच्छा ठीक है, तो ये आपको पढ़ाया जा चुका है। मेरा केवल एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो मुझे आपको बताना था कि ये कॉन्सेप्ट था कार्ल लुडविग बुलर का, जिन्होंने दिया था कौन सा मॉडल? ऑर्गेनन मॉडल, ठीक है। वहीं से इस आइडिया को रोमन जैकॉब्सन ने डिराइव किया है और इन्होंने 3 functions की बात की थी,
एक्सप्रेसिव, रिप्रेजेंटेटिव एंड कॉग्निटिव। और इन्होंने बात की है 6 फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज की, ठीक है। सो दिस हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड इन योर लिंग्विस्टिक्स पार्ट, and since it is not part of this Russian formalism, but I included it to just to remind you these things. Okay then, thank you sir. Thank you, sir. Happy Diwali आप Thank सबके। you, sir. The session was very informative, sir. oh thank you। Happy Diwali. तो आप सबके लिए स्वीट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ओके, आई विल ट्राई टू हैव अनदर लेक्चर टुमारो ऑन न्यू क्रिटिसिज्म। आर यू फ्री इन डे टाइम एवरीवन? अच्छा, ठीक है। तो एट अराउंड 11 अगेन टुमारो ऑन न्यू क्रिटिसिज्म, ठीक है। उसके बाद में जो या यस, एक क्वेश्चन था सर। पूछो यार, क्या बात है। वो सर जो आपने नोट सेंड किए हैं पीडीएफ में, नोट्स नहीं, क्वेश्चंस है वो। हाँ सर, जो क्वेश्चंस हैं उसमें सर कुछ जो ऑप्शंस हैं वो 2 जगह फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ और आ रहा है और उधर कुछ और आ रहा है। देखो, एक आध हो सकता है यार, मतलब ऐसा हो सकता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ नोटिस आप कर पाए तो सबको बता दें वो, ये मतलब ये, हाँ, ये ह्यूमन एरर्स हो सकती हैं, है ना। तो आई एक्सेप्ट दैट। तो आप उसको अगर कुछ भी ऐसा नोटिस करें तो आप बताएं उसको। और इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप उसको आंसर को वेरीफाई कर लें और सब लोगों को बता दें कि ये इन दोनों का ये आंसर रहेगा, है ना। अनुज जी, प्लीज शेयर इट इफ यू फाइंड। हाँ, ठीक है, क्योंकि ये देखो, ये कलेक्टिव एफर्ट होता है ना। तो सब लोग एक दूसरे को बताइएगा। जब आप बताएंगे तो आपको एग्जाम में भी याद रहेगा कि हाँ, हमने ये बात बताई थी सब लोगों को, है ना। इसलिए सर, इसलिए बताया है कि बच्चों को पता लग जाए। हाँ, नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अनुज जी, आप प्लीज उसको सेंड कर दीजिएगा। आई विल बी वेरी थैंकफुल। मैं उसमें एक तो डेट राइट पोएट वाला है, आप देख लीजिएगा उसको। आप उसमें देखो, जैसे उसमें मैंने दिया ना प्रैक्टिस सेट 1 2 3 स्टेप से दिया है, ठीक है। वो आप प्रैक्टिस सेट नंबर, क्वेश्चन नंबर और क्या आपका उसमें डाउट है या इंटरप्रिटेशन आपकी है, वो शेयर कर दीजिए ग्रुप में से, सब लोग दूसरे को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और मेरे कमेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी दे दूंगा उसमें, ठीक है। ठीक है सर। ओके, इज देयर एनी अदर थिंग? Thank you, sir. ऑलराइट, यू आर वेलकम। थैंक यू। Okay, you are welcome. Bye then, have a nice day.